الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم یہ قلعہ دیدار سنگھ یا قلعہ دیدار مصطفیٰ گجرانوالے کے قریب ہی علاقہ ہے، اور وہاں جامعہ باب العلم کے اندر ہم حاضر ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب کا یہ ادارہ ہے، تو بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم کوئی بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اچھا بھائی، آپ کو پتہ ہے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہاں بیٹا جی آپ بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ شاباش، اور کوئی بتائے گا؟ جی بیٹا جی آپ بتائیں، بیٹھے بیٹھے بتا دیں، کوئی مسئلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ تعریف غلط ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا ہے؟ پیدا، یہ نہیں کہنا کہ کوئی آ نہیں سکتا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آنا ہے، انہوں نے زندہ آسمان سے آنا ہے، زندہ آسمان سے آنا ہے، زندہ آسمان سے نزول کرنا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں۔ بیٹا جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ زندہ کون اٹھایا گیا ہے اوپر آسمان پہ؟ بولے حضرت عیسیٰ، بولے اونچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یاد کرنا ہے، یاد کرنی ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ ہاں بھائی تم بتاؤ ٹوپی والے، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اٹھائے گئے ہیں؟ آسمان پہ، زندہ وہ موجود ہے، جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں نا اپنے جسم کے ساتھ، ایسے ہی عام انسان جو مرتے ہیں ان کی روحیں آسمان پر اٹھائی جاتی ہے نا جی، لیکن وہ مرے تو ہے نہیں، وہ تو زندہ ہے، تو وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گے، تو قرب قیامت میں وہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے، نیچے تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے نا تو وہ کوئی کتابیں وغیرہ نہیں لکھیں گے، وہ کوئی اعلان بھی نہیں کریں گے، نہ ہی کروائیں گے، نہ ہی شور ڈالیں گے، نہ کوئی لوگوں کو بتائیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اپنے منہ سے تو انہوں نے نکالنا ہی نہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، اپنے منہ سے نہیں وہ بتائیں گے۔ احادیث کے اندر بھی جو ہمیں ذکر ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے ان کی علامتیں ذکر ملتی ہیں، ان علامتوں کو دیکھ کر کے لوگ خود پہچان جائیں گے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ پتہ ہے کہاں پہ نازل ہوں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ کے قریب، دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد چادریں پہنے ہوئے، وہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جب وہ آئیں گے نا تو اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، تو نماز کے لیے سارے مسلمان آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جماعت کروائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو شخص کھڑے ہوں گے نا ان میں سے ایک شخص کو پکڑ کے آگے کریں گے، کہ آپ نہیں، آپ کرو۔ وہ جس شخص کو آگے کریں گے نا ان کو کہتے ہیں امام مہدی۔ کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی۔ ان کا اصلی ویسے نام محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ اور ان کے ابو کا نام ہوگا عبداللہ۔ کیا ہوگا؟ عبداللہ، محمد بن عبداللہ، اور وہ فاطمی سید ہوں گے۔
फातमी सैयद आ गए। तो वो उनको आगे करेंगे। और अच्छा, उनको इमाम पता है क्यों कहा जाता है? इमाम मुसल्ला के ऊपर खड़े होने की वजह से कहा जाता है। तो इमामत करवाएंगे ना, उनकी इक्तदा के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। समझ आई कि नहीं? तो इमाम महदी उनको कहा जाता है। तो असली नाम क्या है हज़रत इमाम महदी का? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का भी यही नाम था ना, उनके वालिद का भी यही नाम था कि नहीं? तो हुजूर ने फरमाया वो मेरे नाम पे आएगा, और जो मेरे बाप का नाम उसके बाप का भी वही नाम, जो मेरी माँ का नाम उसकी माँ का भी वही नाम। समझ आई कि नहीं? अच्छा, हजरत इमाम महदी भी आके कोई किताबें वगैरह नहीं लिखेंगे जी, कोई ऐलान नहीं करवाएंगे मस्जिदों के अंदर, यार इतने ऐलान करिए 100 रुपया फड़ ऐलान कर मैं इमाम मेहदी हाँ, लोगों को दस मैं इमाम मेहदी है। बल्कि वो ना होगा ये कि खाने काबे का ऐसे तवाफ कर रहे होंगे हजरत इमाम मेहदी, तो वक्त के 40 अब्दाल 40 औलिया अल्लाह, बड़े बड़े औलिया, वो भी तवाफ कर, वो ना अल्लाह पाक उनको इल्हाम करेगा। वो 40 औलिया को क्या अल्लाह इल्हाम करेगा, और उनको वो चीज पता चल जाएगी ये तो इमाम महदी है। तो हजरत इमाम महदी भी कोई आके ऐलान नहीं करेंगे। अब देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने से अब तक तकरीबन 1450 साल हो गए, ऐसे ही है ना? तो इस 1450 साल के अरसे में बहुत से मसीहियत के दावेदार आए और बहुत से महदियत के दावेदार आए। दो कीदे हैं, दो कीदे, एक महदियत का दावेदार, महदियत का दावेदार मतलब आके कोई बंदा कहे जी मैं इमाम मेहदी मैं, समझ आई कि नहीं? और मसीहियत का दावेदार मतलब कोई बंदा ये कहे कि वो ईसा इब्न मरियम वो वाला मैं हूं, जिसने आना नहीं था वो मैं हूं। अब समझ आई? तो बहुत से आ चुकी है मेरा पुत्र। अब उनमें से उन जैली और कज़ाबों में से एक शख्स का नाम था मिर्जा गुलाम कादियानी। क्या नाम था? मिर्जा गुलाम कादियानी। उसने कहा कि वो इमाम मेहदी भी मैं ही हूं, तो वो मसीह भी मैं ही। समझ आई कि नहीं? वो इमाम मेहदी भी मैं हूं तो और नबी भी मैं, तो रसूल भी मैं, तो मोहम्मद भी मैं, तो खुदा का पुत्र भी मैं, तो खुदा भी मैं। उसने बड़े बड़े दावे जात किए, उसने कोई एक दावा नहीं उसने किया। लोग तो यही समझते ना उसने कोई नबूवत का दावा किया, बल्कि उसने खुदाई तक का दावा किया। वो कहता रही तो नहीं फिल मनाम अल्लाह व तयक्कन तो अन्ना नहीं हुआ, एक मनाम के अंदर मैंने अपने आप को एने अल्लाह बने देखा, और फिर मैंने उसकी तबीर निकालता है, कहता है व तयक्कन तो अन्ना नहीं हुआ, और फिर मैंने यकीन कर लिया कि वो अल्लाह असल में मैं ही। फिर वो कहता है जब मैं अल्लाह बन गया तो फिर मैंने कहा कि अब इस कायनात को सरे नो मैं तख्लीक करूंगा। कहने लगा कि पहले मैंने आसमानों को मैंने तख्लीक किया, फिर सूरज चांद सितारे जन्नत दोज़ख को मैंने तख्लीक किया, हूरो गिलमा फरिश्तों को मैंने तख्लीक किया। कहने लगा फिर मैं जमीन की तरफ बढ़ा और कहा कि अब मैं जमीन को भी असरे नो मुज़य्यन करूंगा। कहने लगा कि मैंने कुन कहा तो फयकून जमीन बन गई। कहने लगा कि फिर जब मैंने जमीन बना ली तो अब कहा कि यहाँ पर कोई इंसान भी होने चाहिए, तो मैंने कसद किया कि मैं आदम को तख्लीक करूं। कहने लगा कि खलक़तुल आदमा, मैंने आदम को तख्लीक। तो ये जितनी भी औलाद है ना, तो ये किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की। और उस आदम को किसने तख्लीक किया है? कादियानी अकीदे के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी अकीदे के मुताबिक किसने तख्लीक की है? मिर्ज़ा। तो पता क्या चला कि कल तक तो हमें ये पता था कि उसने नबूवत का दावा किया है, इस खबीस के बच्चे ने तो खुदाई का दावा किया हुआ है जी, किया क्या नहीं? तो मेरा बेटा कादियानियत का इल्म हासिल करना है, ठीक है, कादियानियत का इल्म हासिल,
वो लोग आपके अंदर घुस के रहते हैं, आपके अंदर घुस के रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता ये तो बंदा कादियानी है यार। आपकी तरह ही वो कलमा पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, वो भी कहते हैं हम खत्म नबूवत को मानते, कादियानी कहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता हुए यार ये बंदा तो कादियानी है। उसकी वजह पता क्या है, आप कैसे नहीं पहचान सकते कि आपको ही नहीं पता कि कादियानी होता कौन, उसका अकीदा क्या है, नजरिया क्या है, उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानते आपको पता ही नहीं। तो मेरा पुत्र वो पहचान हासिल करनी है, आप लोगों करेंगे, वो करेंगे आप पुत्र जी, कादियानियों की पहचान भी करनी है, उनके अकीदे भी जानने हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसी अदारे के अंदर अन करीब हम बकायदा खत्म नबूवत का एक विंग बना रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह, और सारे बच्चों को खत्म नबूवत की ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह, तारुफ बताएंगे, कादियानियत के बारे में बताएंगे, उनके अकायद और नजरियात बताएंगे, उनका तरीका वारदात बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। फिर साथ आपको सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह, ताकि ये बच्चे हमारे ट्रेनिंग हासिल करके, ये ट्रेनिंग है ना, एक ट्रेनिंग हासिल करके फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब लॉन्च करें तो फिर तू नहीं पढ़ दे अजी इंशाल्लाह। कादियानी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फैले हैं और वो लोगों के अकायद और नजरियात खराब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप सारे हमारे मुआवन होंगे, बहुत ही सहज, बहुत। अच्छा यार ये छोटे छोटे रसाले हैं, ये आपको बाद में आपके उस्ताद ग्रामी दे देंगे इंशाल्लाह, तो इनसे लेके पढ़ने हैं आप सब ने, वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह जो कुछ पढ़िया पढ़ाया सुनिया सुनाया कबूल फरमा, अल्लाह इस अदारे दी बरकत अता फरमा, इस अदारे दे मुआमिनीन दी खैर फरमा, ए सारे बच्चियां दी खैर फरमा, असातिज़ा दी खैर फरमा, मुआमिनीन दी खैर फरमा। अल्लाह सानू सारियां नू खत्मे नबूवत दा मुजाहिद बना, साडे खत्मे नबूवत दे इस काम नू अपनी बारगाह च कबूल फरमा। ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ सवाल करना है मुफ्ती साहब, खत्मे नबूवत दे बारे में। हां जी पूछो। अल्लाह साहब तो जब आपने इरशाद फरमाया फातिमी सैयद, वो तो अवजाहत करते हो, यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी ना, तो उनके शोहर हजरत मौला अली पाक, ऐसे ही है ना। तो जो सैयद चले हैं ना, असली सैयद, सच्चे मुच्ची वाले सैयद, वो उनकी औलाद है, अब समझ आई, इसलिए कहा जाता है कि फातिमी सैयद। और एक सियासता में हदीस मिलती है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल फजल को जब उनके बेटे की मुबारकबाद दी थी तो उनसे फरमाया था कि जो आखिरी इमाम होगा ना वो आपकी राह से ही होगा, इसके बारे में। हाँ वो हदीस मुझे तो नहीं पता, पर अबुल फजल वो सैयद थे, वो कौन? अबुल फजल से मुराद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जी, आपके चचा जी। हाँ मेरे असल में पता है कि हजरत इमाम महदी के मुतल्लक बहुत सी हदीसें ऐसी हैं कि जो कि ज़ईफ है, मौजू है, और खास करके राफियों की तरफ से आई, ठीक है, राफियों को लेना, क्योंकि वो हजरत इमाम महदी को उनके नजदीक ये कि इमाम महदी एक गार के अंदर, गारे सुमरा के अंदर छुपे हुए हैं, तो उनको वो कहते हैं कि हम महदी मुंतजर कहते हैं कि जिसका इंतजार किया जा रहा है, जबकि हमारे नजदीक वो अभी पैदा होंगे, ठीक है। तो वो ये रवायतें उनकी, उन्होंने कुछ दखल दिया होगा, ये रिवायत तो मैंने इधर दरसगामी के पुरानी एक किताब में पढ़ी है। अच्छा वैसे उधर हवाला उन किताबों का ही क्या नहीं, आपकी सियासता के अंदर भी तो ज़ईफ है कि नहीं है, ज़ईफ होते हैं। वो महदी के मुतल्लक अमूमी तौर पे इसके मुतल्लक अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो किताब है कि अल अल अरफुल जादी, अल्लामा इस्माइल नबहानी शायद उन्होंने दी गाल बनी, बुजुर्ग ने कोई मशहूर, उन्होंने रवायतां इकट्ठियां कीतियां ने इमाम महदी दी, वो सही ने सारे, ठीक है जी।
وہ किताब तुहानू मिल जाएगी नेट दे उत्ते। अगर तो तुसी मेरे ते WhatsApp ते शामिल होवो ना, मैनू मैसेज करियो, किताब फिर तुहानू PDF सेंड कर, वो तुहानू सही रुआयत उत्थों मिल जाए। उसमें आखिरी का लफ्ज नहीं है, उसमें इमाम का लफ्ज है, और इमामत तो फिर रही है ना, इमामत से मुराद है हुकूमत वाली इमामत, इमामत कुबरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बासी खुलाफा तो फिर सदियों उन्होंने खिलाफत की है, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो फरमान है वो पूरा हो, आखिरी इमाम की बात आपने नहीं करना। और अच्छा, फिर उनके अंदर भी एक अब्बासी खलीफा के अंदर भी एक नाम महदी हुआ, ठीक है ना, महदी का नाम था। हाँ, वो उनको जो बिशारत दी तो वो इस नाम की बिशारत दी कि आपकी औलाद के अच्छा लफ्ज़ महदी जेड़ा ना, लफ्ज़ महदी वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वास्ते भी आया है, हजूर वास्ते भी आया है, कई बुजुर्गों वास्ते भी आया है। वो बहुत ने महदी, लफ्ज़ महदी वो बड़े वास्ते, वो वाली महदी। लेकिन जो कुर्बे क़यामत तशरीफ वो जेड़े ने आखिरी जेड़े जेड़े जिन्हां दे बारे जिक्र है, और किताब ही है, रसाला भी मेरा पढ़िया जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ठीक है जी, असल स्कैन भी लाए ते ओ महदी ओ होर ने, वो एक हो ने, एक ही ने, वो कोई दूसरे नहीं। और आपने जो ये बताया कि उन्होंने खुदाई का दावा किया था, किसने? मिर्ज़ा कादियानी, कज़्ज़ाब, दज्जाल ने, जो आपने बताया जी, अगर इसका हवाला मिल जाए, क्योंकि आप मेरी किताब आ रही है कादियानी तौहीद, उसके अंदर मैंने कादियानियों के तकरीबन 50 हवाले लगाए असल किताबों के स्कैन, जिससे यह साबित किया कि इसका तो खुदाई का दावा था। अब आपने हमें बताया, हम तो ये यकीन कर लेंगे जी, और अगर हम ये बात बाहर जाके बताएं, वो तो फिर उनकी किताब का हवाला बिल्कुल। आपको ये दिखे ना ऐशा जी भाइयों, ए मेरा पुत्र, मैं जेड़ी भी किताब अपनी लिखना वा ना, ऐसे सवाल दे जवाब दे वास्ते मैं कादियानी किताबां दे असल स्कैन आखिर ते लाना, असल स्कैन लगे जी देंदे हो। मेरी हर किताब दे विच असल स्कैन हो मिलणगे, लाजमी मिलन। अगर आप ये बता दें तो ये क्या जो ये आपने अभी बताया खुदाई का, ये भी कर, ये भी कर, ये मुल्ला उसने कहा कि मैं अरे इतनी फिल्म नामी आई ना लावत यकन तो उन्होंने वक्त उन्हें वाला मैंने भूल गए, मिल जाएगा, मेरे WhatsApp पे राब्ता करियो, स्कैन असली सेंड कर दे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। और कोई भाई कुछ और कुछ, चलो फिर अल्लाह दे बाद, ठीक है सर।